Hi, good morning all. Good morning, sir. Yeah, is screen visible? Are you able to see screen? Yes, sir. Okay, great guys. So now today we are discussing regarding Git initialization and its area. The last session we have discussed about what is Git, why we require the Git, uh, how we can resolve two problems, code integration and changes monitoring, how we can implement. So we have several cloud versioning tools we have discussed we have already discussed regarding the several tools like we have Bitbucket, Git, svn and all those are very old, now they those are not usable. We are currently trending one is Git and Bitbucket. Most of the what is a Bitbucket, what is a GitHub and Git, there are bit difference, so we will clarify here. So guys, in the version control there are two parts we have already discussed, but then still again I'll revise once. There are two parts. One is remote repository where we store the entire code, and another individual machine where we install the local client software. So using the client software we have to sync our local directory, means our local folder, to repository folder. So that software we have to install in our system. So basically we install, I'll recommend it, below softwares to installation part. So I'm putting here git scm, git scm download link. Okay, client software, client. Okay, you have to download from here, basically where we are command instruction giving local to remote. Remote is a server. Suppose we are here using server. How many servers are there? GitHub, Bitbucket, etc. We are using. There are many more available, but mainly in market we are using GitHub or Bitbucket. Most of the Bitbucket. The reason is we use the Jira application to manage the software's development. Okay, so Shreya, what is the difference between GitHub and Git? This is a client software which called a Git, and this is a GitHub. What would be difference between both? What is the difference between Git and GitHub? गिटहब में हम लोग रेपो बनाते हैं एंड गिट में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं. यस, बेसिकली ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो हम लोग अपने मशीन में इंस्टॉल करेंगे, और गिटहब जो है वो क्लाउड पे रिपोजिटरी होती है जहाँ पे हम लोग वो रिपोजिटरी सिंक करेंगे. लेट्स सी, आपके पास दो फोल्डर है. मैं आपके सामने अभी बना के दिखाऊंगा. इट्स वेरी सिंपल पार्ट, बट आपको समझना जरूरी है. मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. सबसे पहले आपको करना क्या है, गिट एससीएम पे जाना है. हम्म, यहाँ पे गिट एससीएम पे, और मैं पेंट में आपको बता देता हूँ कि दो जो फोल्डर है, दोनों फोल्डर कहाँ पे होते हैं.
देखो, पहला फोल्डर जो है इंटरनेट पे यानी क्लाउड पे स्टोर रहेगा, जो कि हो सकता है गिटहब में या बिटबकेट में या कहीं पे भी। तो हम लोग जो है वो बेसिकली फ्री में मिलता है हमें, तो गिटहब का डिसाइड करते हैं। गिटहब गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपकी रिपोजिटरी जो है वो क्रिएट करके रख सकते हैं सिंपली। ओके। और दूसरा जो है, एक आपकी जो कंप्यूटर है, आपका जो मशीन है, वो आपके कंप्यूटर में रखेंगे। दो यहाँ पे रिपोजिटरीज आती है। लेट्स सी, अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बैंक आईईएस ऐप। लेट्स सी, आईईएस ऐप। मेरे पास यहाँ पे क्लाउड पे एक आईईएस ऐप का नाम का एक मैंने फोल्डर यानी रिपोजिटरी बनाया है। तो ये रिपोजिटरी जो है इसका मैं क्लोन करके ले लूंगा, यानी इसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है मैं कहाँ पे ले लूंगा, यहाँ पे ले लूंगा मेरे मशीन पे। इसका भी नाम क्या होगा, अगर ये क्लोन है तो ऑब्वियसली ये जो है इसका नाम भी वही आएगा। ठीक है, आईईएस ऐप। अभी यहाँ पे अगर मैं कोई फाइल या कुछ भी क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं फाइल या कुछ भी क्रिएट करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये फाइल मुझे सबसे पहले कमिट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, इसको फर्स्ट थिंग है कि इसके अंदर स्टेजिंग एरिया होते हैं, एरिया, अनट्रैक एरिया। ठीक, ये दो एरिया जो है आपको ध्यान देने होते हैं, स्टेजिंग एरिया, अनट्रैक एरिया। और तीसरा जो है वो रिमोट एरिया है, जो कि आपका ये वाला एरिया होता है। तो ये ध्यान में आने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। पहले तो आपकी ये जो फोल्डर है ये रिमोट में है, दूसरा जो आपका फोल्डर है वो है आपके लोकल में। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी कौन सी फाइल जो है स्टेजिंग एरिया में है, अनट्रैक एरिया में है या रिमोट एरिया में है? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेजिंग एरिया क्या है, अनट्रैक एरिया क्या है, और इसका फायदा कैसे होता है, और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो उसकी कमांड्स क्या है ये भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है। अ, संकेत, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। हाँ। तो आप लोगों ने जो पहले स्टडी किया था गिट, वो बेसिक के लिए था, लेकिन ये जो अभी स्टडी करेंगे ये डेप्थ में रहेगा, इंटायर कमांड होंगी, जैसे कि मर्ज। मर्ज हुआ तो क्या हुआ, रिसेट, हार्ड रिसेट, ये सारी चीजें आने वाली है इसमें, और इसका बैकग्राउंड भी आएगा। सो कंसंट्रेशन होना जरूरी है, मैं सबको क्वेश्चन करूंगा बीच में। तो सबसे पहले दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज टू क्रिएट रेपोजिटरी। देखो, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं रिपोजिटरी क्रिएट करने के। आज का हमारा ऑपरेशन तो ये जानना है ही है, लेकिन हमें सबसे पहले करना क्या है, ये जो फोल्डर है ये रिपोजिटरी कहाँ है, हमारी नहीं है, आईईएस ऐप की हमें रिपोजिटरी नहीं है। तो अब सबसे पहले हम स्टेप वन में क्रिएट करेंगे आईईएस ऐप की रिपोजिटरी, क्रिएट रिपोजिटरी। पहला जो वे है, वी कैन क्रिएट डायरेक्ट, वी कैन क्रिएट रिपोजिटरी, रेपो इन क्लाउड। लेट्स सी, अभी हम लोग गिट हब यूज कर रहे, तो इन गिट हब पहला जो तरीका है कि हम लोग गिट हब में करेंगे, एंड वो जो रिपोजिटरी है ये हम चेकआउट करेंगे सेकंड स्टेप में, एंड विल चेकआउट रिमोट रिपोजिटरी टू रेपो टू लोकल, मतलब ये लोकल में ले लेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा जो वे होता है जो हम इसके बाद सीखेंगे, वी विल क्रिएट रिपोजिटरी इन लोकल, रेपो इन लोकल, एंड पुश टू रिमोट, या जिसे हम गिट हब कहेंगे। देखो, पहला जो वे है, हम लोग क्या करेंगे,
रिपोजिटरी जो है, दोनों में से आप बना सकते हैं, आपको कभी भी कोई भी वे काम आ सकता है। अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई फोल्डर है आपके सिस्टम में और उसको आपको बनाना है गिट की रिपोजिटरी, तो ये वाली स्टेप आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू कन्वर्ट your local normal folder to git repository, then you have to follow this step. पता नहीं कि डेवलपमेंट में आपको कब कौन सा फोल्डर आपको गिट पे या बिटबकेट पे रिमोट पे रखना हो। हाँ, लेकिन अगर आपको फ्रेश प्रोजेक्ट मिल रहा है एंड आपको ऑलरेडी गिट की रिपोजिटरी क्रिएट, नई गिट रिपोजिटरी मिलेगी क्रिएट करते हुए गिट हब में जाके, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। मतलब दोनों ही सेम ही है, बट यूज केसेस अलग है। अगर आपका ऑलरेडी फोल्डर है तो आपको थर्ड स्टेप फॉलो करनी है पहले। अगर आपके पास पहले से फोल्डर नहीं है और आपको बनाना है, तो आप यहाँ पे जाके गिट हब में जाना है। सबसे पहले आपको गिट हब में जाना है, और मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि सबका गिट हब का लॉगिन अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, सबका गिट हब का अकाउंट होना जरूरी है। और हमारे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, हम सिर्फ एक ही गिट हब के प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में डालने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सबके लिए ब्रांचेस अलग होगी। ऑल पीपल हैव, सबके लिए अलग ब्रांचेस जरूर होगी। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल कंसंट्रेशन करूंगा कि ये जो रिपोजिटरी है ये मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, फिर मैं ये मेरे लोकल पे लेके दिखाऊंगा कि कैसे लोकल पे लेते हैं। देन कौन स्टेजिंग एरिया क्या है, अनट्रैक एरिया क्या है एंड रिमोट एरिया क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टेप 1 में आज हम सीखेंगे कि कैसे क्रिएट करना है रिपोजिटरी गिटहब पे। तो लेट्स स्टार्ट। जस्ट सिंपली यहाँ पे देखो, ये प्लस का साइन है या तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, दोनों में से आप कहीं पे भी कर सकते हैं। प्लस के साइन पे क्रिएट किया मैंने न्यू रिपोजिटरी। फिर यहाँ पे ओनर मेरा जो भी यूजर नेम है वो आएगा, एंड यहाँ पे आपको नेम देना है। आई, मैं यहाँ पे दे देता हूँ IES। ये आपके मेजर प्रोजेक्ट का नाम है, तो सारा प्रोजेक्ट जो है मैं यहाँ से ट्रैक करूंगा आप लोगों को। नो वरीज। IES ऐप बेसिकली इसका जो पूरा स्मॉल में ही होना चाहिए। और ये पब्लिक है या प्राइवेट है? अगर प्राइवेट है तो आपको यूजर नेम पासवर्ड और वो सारी चीजें जो है वो शेयर करनी पड़ेगी। प्राइवेट हम माइक्रो सर्विसेज के कॉन्फ़िगरेशन सर्वर में डिस्कस करने वाले हैं कि इसका पासवर्ड और हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, इसके परमिशंस के बारे में। अभी फिलहाल पब्लिक मतलब आपकी ये जो रिपोजिटरी है, देखो फोल्डर को हम लोग रिपोजिटरी कहेंगे, दैट्स इट। IES नाम का मैंने बनाया है और हम इसे हमेशा पब्लिक रखेंगे हमारे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि एवरीबॉडी शुड एक्सेस। और प्राइवेट का हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो सर्विसेज में। देन नेक्स्ट फाइल होती है एड अ रिडीम फाइल। ये रिडमी फाइल जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो प्रोजेक्ट है, ये जो भी रिपोजिटरी बनेगा उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन उसमें लिखनी होती है डिटेल में। ये फाइल क्रिएट होगी। देन गिट इग्नोर फाइल भी आपको चाहिए। गिट इग्नोर फाइल क्या है कि अगर आपको सम फाइल्स आपको गिट रिपोजिटरी में लेनी नहीं है, तो ये फाइल आपको जरूरी है। और हमेशा हम ये गिट इग्नोर फाइल लेते हैं, इसके बारे में आगे डिप में जानेंगे। देन नेक्स्ट चूज लाइसेंस। लाइसेंस आप यहाँ पे जनरल पब्लिक लाइसेंस ले सकते हो या नन भी करके हो सकता है आपका। क्रिएट रिपोजिटरी, इस तरह से आपको रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। जैसे ही आप रिपोजिटरी क्रिएट करोगे तो देखो आपने जो रीडमी फाइल बनाई हुई है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखाई देगी। ये एडिटेबल फाइल है, आपको इसे एडिट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। आपकी आपके प्रोजेक्ट की जो डिटेल है यहाँ पे आपको देनी होती है। ठीक है, दैट्स इट। ये फाइल क्रिएट हो चुकी है अभी। और ये रिपोजिटरी देखो, इस नाम की रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अब हमने ये फोल्डर या रिपोजिटरी जो है ये हमने गिट हब पे क्रिएट की हुई है, गिट हब पे।
हमारे लोकल पे है नहीं है ये। हमें लोकल पे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसे हमें चेकआउट करना पड़ेगा। तो चेकआउट कैसे करते हैं इसको? सिंपल है। आपका जो आईएएस ऐप का जो रेपो है, देखो यहाँ पे, देखो आईएएस ऐप पे आ गए आप। आईएएस ऐप पे आने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन में कोड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्रीन में कोड दिखाई दे रहा है, ये वाला। ये यूआरएल कॉपी करना है और आपको कहाँ पे चाहिए वहां पे जाइए। जो भी आपका ड्राइव है, लेट्स सी एफ ड्राइव है या ई ड्राइव है, कौन सा भी ड्राइव में आपको जाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल रेपो। मेरी सारी रेपोज मैं यहीं पे रखूंगा। और यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, cmd। देखो मैंने कैसे कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन की है। जस्ट सिंपली इसको सिलेक्ट किया, cmd किया, और वो जो यूआरएल है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा git clone, दैट्स इट। और वो यूआरएल दे दी है। कौन सी कमांड है यहाँ पे? git clone। git clone का मतलब कि वहां पे जो रिपोजिटरी है वो सेम रिपोजिटरी मेरे यहाँ पे कॉपी हो जाए, डुप्लीकेट बन जाए। तो मैंने यहाँ पे git clone की जो है वो कमांड चला दी, ये चल गया। अभी अगर आप देखोगे तो मेरी ये जो रिपोजिटरी है ये यहाँ पे आपको दिखाई देगी। पहली कमांड कौन सी थी? आज के सबसे पहले हमने कमांड क्या की? स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 1। we have created we have created a repository using github github account repo। ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या किया? चेकआउट। लेकिन यहाँ पे स्टेप 2 अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, इफ यू डोंट हैव इंस्टॉल्ड गिट एससीएम, तो स्टेप 2 आपकी गिट एससीएम इंस्टॉलेशन होगा। गिट एससीएम कैसे इंस्टॉल करते हैं? तो यहाँ पे देखो आपके पास ये गिट एससीएम का मैंने डाउनलोड का यूआरएल दिया है, ये आप पुट करो। और आपका विंडोज है तो विंडोज पे क्लिक करो ऐसे। अगर आपका 64 बिट है तो 64 बिट, यहाँ पे देखो ये 64 बिट का डायरेक्टली ओपन हो चुका है, मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसीलिए पहले स्टेप में आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। अगर ये आप करोगे नहीं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में वो ऑप्शन, वो जो कमांड है वो आपको मिलेगी नहीं। आपको इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, यहाँ पे आके इसे ओपन करके नेक्स्ट 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 करना है, बस दैट्स इट। उसके बाद थर्ड स्टेप जो होगी, स्टेप 03, चेकआउट repository locally। हमने अभी क्या किया? कमांड कौन सी यूज की है? git git clone एंड जो यूआरएल है आपकी, जो यूआरएल होगी रेपो यूआरएल, मैं लिख देता हूँ रेपो यूआरएल, दैट्स इट। ये यूआरएल करनी है तो आपकी ये लोकली आ जाएगी। ठीक है। स्टेप 4 में आपको चेक करना है, स्टेप 4 में आपको चेक करना है कि आपके रिपोजिटरी में कुछ नया है क्या। यहाँ पे आइए, इसको ओपन कर देते हैं और इसको ओपन करके कमांड में इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखो कोई भी फोल्डर कमांड लाइन में ओपन करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको उस फोल्डर में जाना है। मैं वापस से बता देता हूँ कि कुछ न्यू पीपल हो सकते हैं। तो मेरा जो गिट का रेपो मैंने यहाँ पे लिया, इसे ओपन करेंगे। ये एड्रेस बार पे यहाँ सब पूरा सिलेक्ट होना चाहिए ब्लू में, एंड cmd ओपन कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि गिट का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिट स्टेटस। देखो ऑन ब्रांच मेन,
कुछ भी कमिट करने के लिए है नहीं, मतलब नया कुछ भी है नहीं है, नया कुछ भी बनाया नहीं है, नया कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे स्टेप 4 में गिट स्टेटस। गिट स्टेटस स्टेप 05 में हम करेंगे क्रिएट न्यू फाइल एंड परफॉर्म करेंगे 06 परफॉर्म परफॉर्म गिट स्टेटस। यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसमें इस फोल्डर जो है, जो मैंने रिपोजिटरी बनाई है, यहाँ पे एक नया फाइल बनाऊंगा। स्टूडेंट डॉट जावा, ये फाइल बनाई मैंने स्टूडेंट डॉट जावा। अब इसका गिट स्टेटस चेक करके देखो। गिट स्टेटस, हाँ। सुदीप, इथे तुला काय दिसत आहे? अनट्रॅक्ट फाईल, इथे अनट्रॅक्ट फाईल दिसत आहे? सागर, हाँ सर। अनट्रॅक्ट फाईल दिसत आहे इथे रेड मध्ये, अनट्रॅक्ट फाईल दिसत आहे। हाँ अनट्रैक्ड फाइल का मतलब होता है कि ये फाइल अभी तक गिट में, गिट का जो इंडेक्स होता है, या अभी फिलहाल के लिए गिट में ऐड नहीं की गई है, और ये फाइल में जो भी चेंजेस होंगे, ये चेंजेस मेंटेन नहीं होंगे, मॉनिटर नहीं कर सकते ये फाइल का। अनट्रैक फाइल्स फाइल है लेकिन गिट में ऐड नहीं है, गिट के फोल्डर में है लेकिन गिट की जो इंडेक्स होता है उसमें ऐड नहीं है। तो मतलब ये फाइल में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और वो ट्रैक भी नहीं होंगे, और रिमोट पे भी जा नहीं सकते। तो आपको करना क्या होता है कि ये अनट्रैक फाइल में से इसमें इसे लेके आना होता है आपके गिट इंडेक्स में। तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक ही मिनट, गिट ऐड ये कमांड है। हम लोग क्या करते हैं, अनट्रैक फाइल का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनट्रैक फाइल। ये देखो लास्ट टाइम अनट्रैक फाइल्स, इसका मीनिंग है नॉट अ repository फाइल, रेपो फाइल। ठीक है, फॉर ऐड दिस फाइल वी हैव टू परफॉर्म स्टेप 07 git add और फाइल नेम, git add फाइल नेम। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे git add और ये जो फाइल का नेम है, ये हम लोग कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे ऐसे। अभी वापस गिट स्टेटस चेक करके देखो, गिट स्टेटस, गिट स्टेटस में देखो एक बार कैसे है ये। तो ये जब ग्रीन होता है इसका मतलब ये है, जब ये ग्रीन होता है तो इसका मतलब ये होता है सिंपली कि ये अब गिट के रिपोजिटरी की फाइल है, ये गिट इंडेक्स में ऐड हो जाती है। गिट का इंडेक्स क्या है, कमिट क्या है, यूनिक कोड क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग, जो फाइल अनट्रैक थी अभी वो ट्रैकिंग में, यानी कि स्टेजिंग एरिया में डाल दी है। स्टेजिंग एरिया मतलब वो एरिया जो कि हमने सेव तो नहीं किया लेकिन गिट में हमने ऐड कर लिया है, लेकिन ये फाइल हमने सेव नहीं की है अभी तक। ठीक है, तो ये स्टेजिंग एरिया में आ गया, ये जो है स्टेजिंग एरिया में आ गया। लेकिन अभी तक आपने इसे इसे रिमोट एरिया के लिए कैपेबल नहीं किया। इसके लिए करना क्या है आपको, नेक्स्ट जो कमांड है, अभी सबसे पहले आप अनट्रैक से आपने किस में मूव किया, उसे अनट्रैक से स्टेज में किया। अब इसके बाद क्या होगा, स्टेज एरिया में चली जाएगी ये अनट्रैक, अनट्रैक फाइल
move to stage area. What is the stage area? Stage area. It is Git area, but not able to store in remote repository. स्टेप 8 में आपको करना क्या है, इसे अभी स्टेज एरिया से आपको रिमोट एरिया के लिए एलिजिबल करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, स्टेप 8 में करोगे यहाँ पे git commit -m और यहाँ पे मैसेज लिखना है। जो भी आपको -m का मतलब है मैसेज, -m करना है, आपको लिखना है यहाँ पे जो भी फाइल। ये किस लिए फाइल है, इसका पर्पस क्या है, स्टूडेंट जावा, दैट्स इट। कमिट करो, अभी गिट स्टेटस करो। देखो गिट स्टेटस करने के बाद आपको कोई भी फाइल दिखाई नहीं देगी, सीधा बोला जाएगा कि आप योर ब्रांच इज अहेड ओरिजिन मेन बाय 1 गिट पुश पब्लिश योर लोकल कमिट्स। तो आपके पास जो कमिट है अब ये लोकली तो सेव हो चुका है, लोकली सेव हो चुका है, ये अभी लोकल फोल्डर पे सेव हो चुका है। आपको पुश करना है रिमोट में। तो पुश करने के लिए नेक्स्ट जो कमांड होगी, गिट कमिट के बाद एंड मैसेज, जो भी आपको टाइप करना है वो। स्टेप 9 में आपको देना है गिट पुश लोकल टू रिमोट। देखो मैंने यहाँ पे गिट कमिट करके ये सेव तो कर दिया है, लोकली मैंने कमिट करके ये तो सेव तो कर दिया है। यहाँ पे जाइए तो आपको ये जो फोल्डर है यहाँ पे वो फाइल नहीं दिखाई देगी। देखो आईएस ऐप में नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे गिट पुश करोगे, नेक्स्ट स्टेप जो है वो गिट पुश की है। जैसे ही आप गिट पुश करोगे, लेट्स सी मैंने यहाँ पे गिट पुश कर दिया है, लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे ही मैंने गिट पुश कर दिया मेरे कमांड में, देखो वैसे ही मैं रिमोट में जैसे जाके देखूंगा तो चेंजेस है। चलो फाइल आ चुके हैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट जावा नाम की, चेक करो। अच्छा, तो आपने आज देखा है अनट्रैक्ड एरिया क्या है, स्टेजिंग एरिया क्या है, देन रिपोजिटरी एरिया क्या है। रिपोजिटरी मतलब यहाँ पे आपको वो दिखाई देना चाहिए।